Good morning, all of you. Today we are discussing here very important topic, that is the time and work. Which topic? Time and work. And if you are aspirant of government exam, that you know very well that the importance of this topic. Okay. Each and every government exam that have a subject of aptitude is must be taken 2 or more than 2 or 3 questions from this topic. Okay, so let's start this topic, and we are discussing over concept of this topic, and then we are go through the questions and clear each and every concept. Okay, very well. So we know and we increase your understanding about the time and work. And third term is, that is the very important term, that is efficiency. ठीक है. And now we are discussing about the relation between the time, work and efficiency. Now, what is the relation between work and efficiency? So, work is directly proportional to efficiency. Now, we understand about this relation. So we can say that if we are more efficient, then we can do more work. Okay, it means if efficiency is increased, then work will also increase. Okay, any doubt? And another most important relation, that is the relation between time and work. Okay, relation between time and work, that is the important one another concept related to this topic. Then time is inversely proportional to work. Time is inversely proportional to efficiency, बोल सकते हैं efficiency. ठीक है ना. Now we can say that if efficiency is increased, then time will be decreased to do a work, to do a piece of work. Okay, the most important 2 concepts will be discussed here. Now we will move to our important and basic questions. That is the more clarity, more and most clarity whenever the question will be solved. Okay, according these 2 concepts. Okay, just a minute. चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. अब देखिए, द फर्स्ट एंड most basic question of time and work is, A can do a piece of work in 20 days. Okay, and B can do a piece of work in 40 days. Okay. Now A and B can do a same piece of work, then work will done in how many days. ठीक है ना. मीन्स A और B यदि दोनों मिलके कार्य करें, तो वो दोनों मिलके कार्य करते हैं तो कितने दिनों में वो कार्य जो है वो खत्म हो जाएगा. ओके, यानी कि सबसे पहले कार्य खत्म हो जाएगा, तो कौन सा कार्य खत्म हो जाएगा, मतलब हमें टोटल वर्क तो पता होना चाहिए. टोटल वर्क तो पता होना चाहिए. टोटल वर्क यहाँ है नहीं. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटेड द टोटल वर्क. ओके,
तो दोस्तों यहाँ पे दैट इज़ द ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 40 डेज। यहाँ से अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें, क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो वही होगा हमारा क्या, टोटल वर्क। एलसीएम क्या है, देखिए एलसीएम लेने के लिए क्या होता है, एक आदमी हो एंड मोर देन वन, दैट इज एन नंबर ऑफ पर्सन्स विच इज डूइंग द सेम पीस ऑफ वर्क। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लार्जर नंबर होता है उसके मल्टीपल को हम ले लेते हैं और उस मल्टीपल में सारे नंबरों का जो है वो डिविजिबल होना चाहिए सारे नंबरों से। यहाँ पे एलसीएम हमने देखा तो 40 ही है 40 जो है दोनों से डिविजिबल है। अब 40 टोटल वर्क आ गया हमारा, 40 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। तो यहाँ पे ए जो है 20 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर देता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड दैट वर्क इज 40। ओके, 20 दिन में अगर कोई व्यक्ति 40 कार्य करता है, ठीक है ना, 40 वर्क कंप्लीट करता है, तो इट मीन्स वो 2 कार्य हर एक दिन कर रहा होगा। ओके, तभी वो 20 दिन में, यानी कि अगर हम इससे इस टोटल वर्क को इससे डिवाइड करें तो इफिशियंसी निकल आएगी उस पर्टिकुलर पर्सन की, यानी कि ए की। तो ए की इफिशियंसी अगर हम देखें तो दोस्तों क्या निकल के आई, 40 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 2 इफिशियंसी किसकी आ गई, ए की। एज सेम एज बी की इफिशियंसी अगर निकाली तो 40 डिवाइड बाई, यहाँ 40 है तो इसकी इफिशियंसी निकल के आई 1। ओके, टोटल वर्क हमने बताया क्या आ गया है, 40। तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों कार्य मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा, तो यानी कि टोटल वर्क क्या है हमारा 40, ए की इफिशियंसी है 2, बी की इफिशियंसी जो है वो है 1, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 3। ओके, देन 13 इंटू 1/3 डेज। ओके, जब हम इसको सिंप्लीफाई करें 40 डिवाइड बाई 3 तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, हेयर इज 10, 3 3 जा 9 एंड रिमाइंडर इज 1। देन 13 इंटू 1/3 डेज में हमारा ये कार्य जो है, हमारा जो वर्क है विल बी कंप्लीटेड बाई ए एंड बी। ओके, सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट विल बी will understand all of you is very clear is in very clear way. So नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलिए, नमस्कार दोस्तों।